it was not like I used to focus only on architecture entrance alone, because in the classes itself, most of the things I covered. So I had enough time to prepare for my boards as well. I wasn't ready for that. I don't want to take the stress of preparing for both the exam at the same time. Board is like, I would say, easy than this entrance exam. Entrance exam में अगर तुम्हें उतना रैंक या फिर उतना परसेंटाइल नहीं आया तो तुम अच्छे कॉलेज में कैसे मिलेगा? Around December or so, I just put my complete focus on JEE BRK exam. क्लासेस लिया था जब सारे स्टूडेंट्स का हाल बेहाल था कि कुछ मैनेज नहीं हो रहा है करके, तब श्रुति मैम ने बोला था कि टाइम मैनेजमेंट करने के लिए अपना शेड्यूल पूरा टाइट मत रखो, थोड़ा थोड़ा मतलब गैप्स होने चाहिए हर एक चीज करने में। काफ़ी लोगों को ना ये बहुत डाउट होता है, स्पेशली जूनियर्स को रहता है कि हमारा तो स्कूल है, ट्यूशन है, अभी तो हम इस पे ही फोकस करेंगे. नो, वी डोंट वांट टू प्रिपेयर बिकॉज अपेरेंटली एट दैट टाइम दे डोंट रियलाइज द importance of preparing for entrance exam, because they think that boards exams are everything, because parents are also saying usually that focus on your boards, that is the first thing. So society makes us feel like a pressure that boards are number one priority, you know, there is nothing other than boards that you need to like focus. Many people feel like that. So how did you manage your time, especially the students who have prepared with their school, with their 12th class? How did you manage school, tuition and everything? Because I'm sure you guys scored 75% plus, that's why how you will get admission through JEE. So how did you manage everything, and what will you tell to your juniors that what they should like how much they should focus on their boards? You know, getting 95% is very important, or maybe 75% plus will also work. So what is your take on this? Everybody's answer can be different and there's no right or wrong, but just tell me your take. Do you think कि यार बोर्ड्स प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि चाहे आर्किटेक्चर एंट्रेंस में कम आ जाए लेकिन बोर्ड्स में 95 तो आनी चाहिए, है ना? या फिर तुम्हें लगता है कि 75 भी आ जाए बोर्ड्स में बट एंट्रेंस में भी बहुत अच्छे आ जाए ताकि JEE से हो जाए? तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस, जयश्री? It's not like you have to get above 75% or 95%. It's up to you. But what I did was, like, for the first 6 months, I did not prepare separately for architecture. I used to attend only the classes. And in the class I was very focused. I used to take notes, that is like learn in the class itself. But after the last 6 months, I used to give some extra time. I would not like I won't stress too much. Just like if I take a few topics, and I would read that in the last 6 months, I would take a few topics and read those topics alone in a day. The next day, I would read some other topic. So gradually, I used to complete everything. And before the exam time, I did a full revision once again, or 2-3 revisions. So it was not like I used to focus only on architecture entrance alone, because in the classes itself, most of the things I covered. So I had enough time to prepare for my boards as well. And for drawing, for marks, yeah, I had to spend time. So I used to complete NCERT first. So that covers my board preparation. And after that, I used to cover extra, like previous year questions for marks. So that was required for JEE. And that also covers board preparation. And for drawing, to be honest, I only attended the classes and practiced. I did all the homeworks. But apart from that, one day in Shruti ma'am's class, she was like, "Do you guys want to focus on your boards now, or if you can focus on your boards now? But then after that, if for the second attempt, if you prepare only for the second attempt, along with your boards, you'll have to prepare for architecture also." And that I wasn't ready for that. I don't want to take the stress of preparing for both the exam at the same time. So she was like, from now on, daily you'll have to practice, give time to drawing 1 hour or 1.5 hours. So from that day, like consistently for around 1.5 months, every day I used to do drawing. Like if I have a revision exam tomorrow in school, anything, I used to do consistently 1.5 hours drawing every day. So that was it. Urmila, what is your take? Actually, अगर क्लासेस का टाइम देखे तो वो मैं तो सिर्फ एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग ही करती थी. वो यूजुअली 8 बजे से ही स्टार्ट होती थी. द टाइम वाज कि रात के बस उतना टाइम, 8 बजे से 10, 2 घंटा 2 क्लास. सो
ड्यूरिंग मतलब एकदम शुरुआत में बस क्लासेस अटेंड करना इज लाइक एनफ फॉर द आर्किटेक्चर प्रिपरेशन. बोर्ड्स तो स्कूल होगा, ट्यूशंस होगा, एंड अगर बीटेक कर रहे हो तो बीटेक में ही बोर्ड्स आ जाता है. लाइक बीटेक कर रहे हो तो बोर्ड्स का तो तुम्हें पता ही चलता है कि सिलेबस क्या है, क्या क्या पूछ सकता है. नॉट बोर्ड इज लाइक आई वुड से इजी देन दिस एंट्रेंस एग्जाम. एंट्रेंस एग्जाम में अगर तुम्हें उतना रैंक या फिर उतना परसेंटाइल नहीं आया तो तुम अच्छे कॉलेज में कैसे मिलेगा. 75% ऊपर ला दिया बोर्ड्स में, बस दैट्स एनफ. अब हाँ, वो इंडिया है, इंडिया ने तो सोसाइटी में बोलेंगे 90% से ज्यादा क्यों नहीं आया, बट एक्चुअली इट्स डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज कि तुम एंट्रेंस एग्जाम में कितना कर रहे हो. 75 से मिनिमम अबव हो गया तो बस. एंड टाइम मैनेजमेंट अगर और बोलूँ तो एकदम एंड के टाइम में, ईयर एंड में, फ्रॉम नवंबर आई वुड से मैंने आर्किटेक्चर मतलब लाइक इसके JEE के प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम दिया. एंड तब तो स्कूल्स वगैरह बंद हो गए थे तो पूरा दिन मिलता था. सुबह में बाकी बोर्ड्स हो, बीटेक हो, उसके लिए पढ़ाई, एंड रात को जब से लाइक क्लासेस होती थी तब उतना, एंड रात को थोड़ा और टाइम दी दिया ड्राइंग को, एप्टीट्यूड को, तो उसी में हो जाएगा. Like I used to come from the college around 8 p.m. and 7:38, and after that my classes would be around 8 o'clock to 10 o'clock. So in the start I felt that was sufficient. Around December also I just put my complete focus on JEE exam. Before 10 days of the exam, we had revision classes, and I think that was sufficient. So Okay. I just covered it up. Manan? So like my PCM tuition classes, offline coaching, started from 3 and it was till 7:30. And like I didn't take maths, I only took drawing and aptitude. So those classes were from 8 to 10. So that wasn't really a big problem for me. But when the extra classes started on my offline coaching, like it was from 7:30 to 8:30. Then sometimes it would overlap, but ऑनलाइन कोचिंग के हिसाब से आपने फिक्स कर दिया था, वो मैंने नंदिनी सर को बताया था, वो टाइमिंग चेंज हो गई थी तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आई. बट स्टिल इट वाज अ लिटिल स्ट्रेसफुल टू मैनेज ऑल द क्लासेस. एंड लाइक 3 से 10 बजे तक मेरा काम ही काम होता है, बीच में थोड़ी ब्रेक मिल जाती है, वरना काफ़ी हो जाता है काम. और मॉर्निंग में मैं होमवर्क वगैरह करता था फ्रॉम 10 to 2. ये मैं अपना जो भी कोचिंग का है, ड्राइंग का है, एप्टीट्यूड का है, एक बार सारा कर लूँ खत्म. मैंने स्टार्टिंग में बीटेक की भी तैयारी कर रहा था मैं, तो उसके लिए भी जो JEE के क्वेश्चन पेपर होते थे PCM कोचिंग पे वो करवाते थे. बट एट द एंड नवंबर दिसंबर में आई डिसाइडेड टू फोकस ऑन BArch ओनली, बिकॉज दोनों साथ में करना पॉसिबल नहीं है. उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए और इतना मेरे से हो नहीं पा रहा था साथ साथ. तो आई फोकस ऑन BArch ओनली. मैम मैंने 11th में लाइक अच्छी से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों ही क्लासेस की थी. वो JEE के लिए की थी, JEE बीटेक के लिए, इसलिए मेरा 11th पक्का था. फिर बाद में जब मैंने एक साल में सोचा कि लाइक नहीं, मुझे आर्किटेक्चर पे अच्छे से फोकस करना है, तो फिर मैंने वो पूरा 12th, ऑलमोस्ट पूरा 12th ड्राइंग, एप्टीट्यूड और मैथ्स पे डाला पूरा. फिर मैंने एकदम एंड में लाइक बोर्ड्स के 1 महीने पहले मैंने लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री को हाथ लगाया. उससे मेरे को 80% मिल गया मेरे को, और मेरा फिक्स था कि मेरे को SP कोई भी SP में जाना है तो फिर मेरे को 75% के ऊपर चाहिए, इसलिए फिर मेरा हो गया था वैसे. सो आई थिंक दैट कि बोर्ड्स पे उतना ध्यान नहीं दिया तो भी चलता, पर लाइक देना चाहिए. अगर आपको नाटक के लिए अच्छा करना है, तो अगर आपको JEE के लिए करना है तो फिर आपको लाइक 75% के ऊपर मिले तो भी इट्स इनफ. At least at the end of the day, they are going to see the college, not the marks of boards. So yeah. I actually agree with Gargi a lot. It depends on which college you want to get into. अगर JEE में NITs में जाना है, SPS में जाना है, then it's fine if you get 75% in boards. But अगर कुछ private colleges में जाना है, I think board score is very important because merit list, we'll get a merit list, right? So yeah, I agree with Gargi. सर बोर्ड्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब JEE ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी से कॉलेज मिलेगा, तो मैंने तो उसी पे ज़्यादा फोकस किया. मैंने स्केड्यूल बना रखा था, जैसे सुबह लर्निंग मुझसे अच्छे से हो जाती थी तो हिस्ट्री टॉपिक्स और लर्निंग वाले टॉपिक्स में सुबह कर लेती थी. फिर बीच में PCM की कोचिंग होती थी आफ्टरनून में 3 से 7, तो उधर जाती थी.
फिर उसके बाद में फिर से क्लासेस होती थी एचएसएससी की, तो वो कर लेती थी। तो मोस्टली आर्किटेक्चर पे फोकस करा और बोर्ड्स में इतना था कि 75 से ऊपर आ जाए। आए तो मैं 90%, लेकिन मैंने इतना फोकस करा नहीं था। I started preparation completely after boards, so there was no. मैंने decide ही नहीं किया था boards तक कि what I wanted to do, pursue or anything. So I started after that, and during the drop year, my time management during the NATA crash course, I was working hard. Like दिन भर ही पढ़ रहे थे almost, and for JEE, I was giving my early morning time to maths, like fresh mind, and then for 2 hours and half an hour for aptitude, cause it was more like a revision for me because of NATA, so it was almost similar. That's why. And for drawing, I was giving 2 hours after that of aptitude, like even mentally exhaust होने के बाद भी you could still draw. That's why. That's it. सर मुझे श्रुति मैम ने जब एक बार लाइव क्लासेस लिया था, जब सारे स्टूडेंट्स का हाल बेहाल था कि कुछ मैनेज नहीं हो रहा है करके, तब श्रुति मैम ने बोला था कि टाइम मैनेजमेंट करने के लिए अपना शेड्यूल पूरा टाइट मत रखो, थोड़ा थोड़ा मतलब गैप्स होने चाहिए हर एक चीज करने में, और एक ही दिन में शुरुआत में आपको हर एक चीज नहीं करनी होती है। तो वही एक टेक रहता है। और बोर्ड्स को लेके ये बात है कि हम लोग बोर्ड्स को छोड़ भी नहीं सकते और सीरियस भी नहीं ले सकते बहुत ज्यादा, क्योंकि वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट ही डिपेंड करेगा। कोई कोई स्टूडेंट ज्यादा स्कोर कर नहीं पाते हैं तो उन्हें तो बोर्ड सीरियसली लेना ही पड़ेगा, और जो लोग का आसानी से मार्क्स आ जाते हैं उन लोग को थोड़ा लाइट लेना पड़ेगा उसे। और इंडिया में तो पेरेंट्स भी तो मतलब रिश्तेदार भी तो हैं, अगर ड्रॉप ले रहे हो तो 1 साल सुनना पड़ेगा ताना, अगर तुरंत निकल जा रहा है तो अच्छा है फिर। For me, I'm in state board, and my state board is pretty easy, and I'm also like good in academics. I did not focus on my boards at all. I gave like 6 months only for JEE mains, and I did prep after the first attempt, like right before the boards. That was all I did. According to me, you should give preference to JEE mains because college will be decided on that. And maybe you should focus more on boards if you're like not able to score more marks only. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा, एंड डेफिनेटली कुछ मोटिवेशन मिला होगा कि हाँ मुझे भी प्रिपेयर करना, आई कैन ऑल्सो डू इट। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सब लोग शॉक थे अपना रिजल्ट्स देख के, और बहुत सारे लोग थे जो सोच रहे थे कि पता नहीं हम कर पाएंगे, प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। किसी को भी देखो ऐसा श्योर शॉट नहीं पता होता कि हम टॉपर बनेंगे ही बनेंगे, राइट? बट जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा। मे बी आप भी नेक्स्ट टॉपर बन सको। इसके लिए आपको बस क्या करना है, क्लासेस अटेंड करनी है, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है। आपने सुना ही सब लोगों ने बोला कि वी जस्ट अटेंडेड द क्लासेस, हमने रिकॉर्डिंग्स देखी, बुक्स पढ़ी, दैट्स इट। इतने सारे लोग करे तो तुम भी कर लोगे। वी हैव सक्सेस रेट ऑफ 1/3, मतलब हर 3 में से एक बच्चा एचएसएससी में टॉपर होता है। तो यार 3 में से एक कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तुम भी आ सकते हो, तुम भी टॉपर बन सकते हो, बट स्टार्ट तो करो, वो पहला स्टेप तो लो। और पहला स्टेप क्या है? डेफिनेटली अटेंड फ्री डेमो क्लास। मैं थोड़ा बोल रही हूँ कि सीधा आके भाई एचएसएससी ज्वाइन कर लो अभी के अभी। फ्री डेमो क्लास करो, देखो कि हम किस बारे में बात कर रहे थे, हम कैसे पढ़ाते हैं, ड्राइंग कैसे पढ़ाते हैं ऑनलाइन, एप्टीट्यूड कैसे पढ़ाते हैं, मैथ्स कैसे पढ़ाते हैं। सो कम अटेंड द फ्री डेमो क्लास इफ यू लाइक इट, इफ यू फील दैट वी कैन हेल्प यू, देन स्टार्ट विथ योर प्रिपरेशन विथ एचएसएससी। ऑनलाइन बेनिफिट रहता है बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप लोगों ने आज देखा भी होगा कि ऑफलाइन में आपको जाना पड़ता है, टाइम भी आपका ऑनलाइन में सेव होता है। तो बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ों को देखने के बाद ही हमने ये पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है, ये रिसोर्सेज बनाए हैं ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ना आए। ऑनलाइन आप प्रॉपर सब कुछ सीख पाओ, आपको सारे रिसोर्सेज मिले, बुक्स भी हम भिजवाते हैं, प्रॉपर डिजिटल रिसोर्सेज भी देते हैं, तो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम एट ऑल। तो अगर आपको फ्री डेमो क्लास बुक करना है, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर विच इज विजिबल ऑन द स्क्रीन। उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप हमारी वेबसाइट पे जाके और डायरेक्टली वहाँ से भी फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको आर्किटेक्चर करना ही है, प्रिपेयर कर लो यार, अच्छे कॉलेज में मिल जाएगा, अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, एक स्टेप क्लोजर हो जाओगे सक्सेस के,
मतलब पैसे वाला सक्सेस कि हाँ आप पैसे कमा पाओगे, क्योंकि अच्छे कॉलेज से हो, अच्छी जगह पे इंटर्नशिप करोगे, अच्छी एजुकेशन होगी तो क्यों नहीं कमा पाओगे पैसे, राइट? तो अभी शायद आप लोगों को इतना सीरियस ना लगता हो, बट देखो पैसे कमाना और करियर बनाना सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो अगर अभी से स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको आगे चल के बहुत 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 ज्यादा रिटर्न और बेनिफिट मिलेगा ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट का, जो शायद आप अभी कोचिंग में करने वाले हो। सो ऑल द बेस्ट गाइस, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।